तो आज हम जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि उस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को लेकर वाइल प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड। सो वो टॉपिक है योर इंग्लिश एग्ज़ाम। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और जितने क्वेश्चंस है और जितने कन्फ्यूजन है उसको ट्राई करेंगे दूर करने की। वेलकम, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं जीसी ग्लोबल एजुकेशन। सो जो इंग्लिश एग्ज़ाम को लेके जो डाउट आता है स्टूडेंट्स की तरफ से वो ये होता है कि what exactly is English exam? So this English exam is nothing but English proficiency exam. So while you are planning your studies abroad, you are expected to have this exam done because universities abroad they want to check your proficiency in English, which means you are able to communicate in English very well. And in this four section, which is listening, writing, reading, and speaking. So why they want because India is not considered as a primarily English speaking country, so that is the only reason they want you to give this English exam. Because students मुझे पूछते हैं because सर हमने हमारी एजुकेशन ऑलरेडी इंग्लिश में की हुई है, so why we need to prove our proficiency in English. So like I mentioned, this is the only reason that India is not primarily the English speaking country, so that is the only reason you need to appear for this exam. So what this exam contains, like I mentioned, it's four sections, which is reading, writing, listening, and speaking. So you need to prove your proficiency in these four sections, which means you can easily communicate in all these four sections because you are going there to study. So you can survive and you can compete in the job market or during your academics. So ये जो चार सेक्शन होते हैं ये टफ नहीं होते, बस थोड़े से ट्रिकी होते हैं। और जो 3 से 4 मेजर एग्जाम होते हैं दे आर नोन एज आईएलटीएस, टोफेल, पीटी एंड डुओलिंगो। दिस इज द न्यू वन। सो आप इस 4 में से अपने एग्जाम दे सकते हैं। सो आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि ये आप व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग दिस एग्जाम। सो व्हेन इट कम्स टू योर रीडिंग, सो रीडिंग इज नथिंग बट यू हैव appeared for your 10th or 12th exam for your English. So उसमें एक पैसेज होता है, it can be 2 or 3 different passages, it can be a story, poem or anything. So based on that you would be given 40 questions. Questions को थोड़े से paraphrase कर दिए होते हैं. So you just have to make sure while you are reading the passage आप उसको understand करके read करो, because then like I mentioned it's paraphrased. क्वेश्चंस पैराफ्रेश होते हैं तो आपको इजी होगा उसको आंसर्स करने में। सो ये 40 क्वेश्चंस आपको देने हैं, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। सो यू हैव टू बी क्विक बट यू हैव टू बी वेरी, योर स्किमिंग एंड स्कैनिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो दैट इज फॉर रीडिंग। योर राइटिंग कंसिस्ट ऑफ 2 टास्क। सो टास्क 1 इट कैन बी अ ग्राफ, सर्वे रिपोर्ट, इट कैन बी एनीथिंग लाइक जिसमें आप उसको क्वांटिटेटिव आप डेटास आपको दिया होगा and based on that they would ask you questions. So in writing there is no right and wrong answer, it's your understanding. So you have to focus on your punctuation, your grammatical mistake, how you frame the sentences. So basically you have to just focus on your grammar. So that's all gonna be in part 1. And task 2 is gonna be a report writing. They would give you a topic and you have to write 250 words for your task 2. And also for task 1 you would get only 150 words target. So you can exceed a little bit but you cannot go low below 150 words, because if you go below 150 words then they might reduce your marks. So make sure करो कि आपका task 1 में 150 marks के 150 words के topic का पूरा उसको explain कर दो, और task 2 में 250 words में थोड़ा सा अबव जा सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू, बट मेक श्योर करना कि वो कम नहीं हो। थर्ड आता है आपका लिसनिंग। लिसनिंग इज लाइक यू वुड बी लिसनिंग टू अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन 2 पीपल। सो कॉन्वर्जेशन का टॉपिक कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी दे आर गाइडिंग यू अबाउट सम प्रोग्राम्स और एनीथिंग। सो बेस्ड ऑन दैट उसमें भी आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, बट इसमें जो ट्रिकी पार्ट होता है वो होता है एक्सेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम दे यूज यूके एक्सेंट। सो थोड़ा टंग ट्विस्टिंग होता है उनका मूवमेंट। सो ऑल यू हैव टू बी जस्ट फोकस्ड एंड फोकस ऑन व्हाट दे आर सेइंग, एंड यू वुड बी गिवन टाइम टू रीड द क्वेश्चंस बिफोर हैंड, सो दैट यू कैन लिसन टू द क्वेश्चंस और आप उस पर आंसर कर सकते हो। सो अगेन ये भी थोड़ा ईजी होता है, ये 1 वर्ड में हो सकते हैं इसके आंसर या मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं।
लास्ट जो आता है वो हमारा आता है राइटिंग. राइटिंग हमें डिस्कस कर लिया. स्पीकिंग में इट्स मोर ऑफ काइंड ऑफ अ इनफॉर्मल इंटरव्यू. सो यू वुड बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर. वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चंस के अगेन कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं होंगे. दे जस्ट वांट टू चेक कि आप कितना इजीली उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. आपको आपका रेंज ऑफ वोकैबुलरी थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा. रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स में आपके मार्क्स जा सकते हैं. और अगेन उसमें भी आपको आपके ग्रामर पर ध्यान देना है. आपको क्वेश्चंस कुछ भी पूछे, इट डजंट हैव टू बी राइट और रॉन्ग, बट बस आपको आपके ग्रामर पर ध्यान देना है दैट यू आर ऑन द टॉपिक एंड यू आर नॉट गोइंग ऑफ द टॉपिक. सो ये बेसिकली यही 4 सेक्शन होते हैं आपके सारे इंग्लिश एग्जाम के. अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कौन सा देना बेटर है, बिकॉज आईएल्ट्स है, टोफेल है, पीटीई है और ड्यूओलिंगो है. सो प्रेफरेबली वी सजेस्ट आईएल्ट्स, क्योंकि आईएल्ट्स वाइडली एक्सेप्टेड है. क्योंकि आईएल्ट्स आप किसी भी कंट्री में अगर आप अपनी एजुकेशन प्लान कर रहे हो या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, सो आईएल्ट्स वो एक्सेप्ट करेंगे. डुओलिंगो, पीटीई और टोफेल थोड़ा सा डाइसी हो जाता है यहाँ पर. कुछ जगह एक्सेप्टेड है, कुछ जगह एक्सेप्टेड नहीं है. और अगेन ये सारे टेस्ट के जो रिजल्ट है वो 2 साल तक वैलिड है. सो मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड ऑफ व्हेन यू आर प्लानिंग योर स्टडीज अब्रॉड, बिकॉज it's an expensive test. So I don't want you guys to take way before और आपके पैसे वेस्ट हो जाए, because after 2 years अगर आप abroad नहीं गए हो तो वो टेस्ट रिजल्ट कोई काम के नहीं, आपको फिर से वो एग्ज़ाम देना होगा. So that was pretty much about it for the English exam and hopefully आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं कर पाया. और अगर आपको कुछ और डाउट्स है या कंसर्न है, you can always reach out to us and book your free consultation today. We also have our IELTS and TOEFL English exams preparation coming up, so you can enroll for that and you can score the best marks out of it. So all the best for your journey for study abroad, and we are always there with you. And if you have any questions, please reach out to us. Thank you.